अलेक्जेंडर द ग्रेट। आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। क्या आप लोगों को पता है कि अलेक्जेंडर ईरानियन किंग डारियस III को हराने के बाद और किंग पोरस को इंडिया में हराने के बाद, हु वाज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ही वांटेड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ इंडिया, बट unfortunately for him, his soldiers refused to move beyond Beas River. And why that was so? Because his soldiers were thoroughly demoralized and demotivated, and they had lost their fighting spirit because they were far away from their homeland for around 10 years, and they were in no mood to fight against the mighty Nandas. And this is the reason why Alexander the Great, who had conquered a greater part of the inhabited world, he had to go back from India disappointed without realizing his dream of conquering India. Hello and a very good afternoon. Welcome back to my channel UPSC Decoded. I am your very own Shailendra sir, and today guys, in this particular session I am going to talk about the importance of staying motivated for cracking the CSE exam, and also how you can enjoy this journey as an aspirant if you are motivated, if your morale is high. So let's proceed. But before that, this is about me. I'm an MBA from Symbiosis Pune. I have written 3 UPSC mains and 1 state PSC mains, and these are some of the organizations where I have mentored and tutored the civil services aspirants. Also, don't forget to subscribe to the channel and do like the session if you are liking it so far. Now the question is, guys, why you should stay motivated? गाइज, बहुत सारे रीजंस हैं आप मोटिवेटेड क्यों होने चाहिए लाइफ में, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा काम करना है आप लोगों को, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है जहाँ पे लाखों एस्पिरेंट्स हर साल अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, एंड दैट इज वाई समटाइम्स द जर्नी माइट सीम आर्ड्यूअस and even disappointing for a lot of students. And I have personally seen many such students who have quit preparing for the exams even though they were very close to achieving their results, just because they had lost their fighting spirits, just like the soldiers of Alexander the Great. So these are some of the reasons why as an UPSC aspirant you should particularly be having a very high morale and your spirit should be high. It fights negative thoughts. Negative thoughts सब लोगों के दिमाग में आते हैं, there is no doubt about it. आप बड़ा काम कर रहे हैं तो आपके थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है, एंग्जाइटी होती है, होगा कि नहीं होगा. But the important thing is to have control over those thoughts. And how do you have control over those thoughts? When you are consciously cultivating that habit. Because staying motivated is also something of a very conscious process. आपको कॉन्शियसली वो हैबिट्स कल्टीवेट करनी पड़ेंगी जो आपको मोटिवेटेड रखता है, जो आपको पैशनेट बनाता है चीज़ की तरफ, और जो आपको गोल ओरिएंटेड बनाता है रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड. आपको किस तरीके से अपना गोल अचीव करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑल द टाइम. देन इट मेक्स द जर्नी एनरिचिंग. आपकी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, एक्साइटिंग बनाता है. देखिए, आपको एग्जाम की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी एज एन एस्पिरेंट. 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, depending upon your luck and your preparation level. But the important thing is to enjoy that journey as an aspirant. This is something which is going to happen only once in your lifetime. एक बार ही आप UPSC aspirant बनेंगे, बार बार नहीं ऐसा मौका मिलेगा. So it's very important that you also enjoy that process and make it worth remembering in your lifetime. Then it maximizes the productivity, thereby helping achieve the target. It maximizes your productivity and it brings out the best in you. When your morale is high, you are very motivated, then you don't think about anything else but just focus on your goal. It increases your productivity. आपका जो retention level है, जो आपका outcome है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, और आउटकम अच्छा होगा. जो आपने पढ़ा है ज़्यादा अच्छे से रिटेन रखेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको टारगेट अचीव करने के बहुत चांसेस हो जाते हैं. नाउ देयर इज नो गारंटी दैट इट विल लीड टू अचीविंग द टारगेट बिकॉज द एग्जाम इज वेरी टफ. एज आई हैव सेड दैट देयर आर लैक्स ऑफ पार्टिसिपेंट, बट आपके जो चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड यू रियली आर इन दैट पोजिशन वेयर यू कैन क्रैक द एग्जाम. नाउ लेट्स कम टू द एजेंडा गाइज. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. ठीक है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोरल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मोटिवेटेड कैसे रहें, क्या टिप्स हैं? सो आई विल गिव यू 8 टिप्स गाइज, वेर इन दीज टिप्स इफ यू रिमेंबर देम ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, देन यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी एनरिचिंग जर्नी as I have just highlighted you in the previous slide. That is going to make your journey very, very exciting, and you will be free
almost free of all the anxieties regarding the UPSC exam and the ultimate result. So the first important tip is to stop worrying about the result. Now you see guys, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारा काम है वो बेसिकली काम करना है, जो कार्य है उसको कंप्लीट करना है एंड नॉट टू थिंक अबाउट द रिजल्ट बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर हैंड. एंड द बेस्ट वे टू डू इट, to stop worrying about the result, to focus on the short term goals, to focus on the medium term goals, so that the long term goal of getting success in the exam can be realized. So this is the first important thing. This is how you should begin this process. Then to make an effective study plan and focus on strategy. So आपको अपने को engage रखना है mentally हर time. आपको किस तरीके से एग्जाम क्रैक करूँ वो सोचना है, आपको प्लानिंग करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको लगभग 1 साल है आपके पास, तो किस तरीके से आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वो आपको दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. आप क्वार्टरली बेसिस पे अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं, गोल्स रख सकते हैं, आप मंथली बेसिस पे रख सकते हैं एंड वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे भी रख सकते हैं. किस तरीके से करना है, how to make an effective study plan and how to make a very solid strategy. This is something I have shared in one of the previous videos. You can check it out. Now the next thing is to enjoy the learning process. Now guys, this thing is very different from rest of the exams because UPSC का आप सिलेबस देखोगे तो लगभग हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा. So it can make your journey very exciting. आप उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखिए, आप उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझिए कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाएगी, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा चीज़ों की तरफ, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. इतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता है, राइट फ्रॉम हिस्ट्री टू ज्योग्राफी टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू society to culture, arts, everything you get to learn about as a result of this process, the UPSC journey, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है और आपका आउटलुक बिल्कुल चेंज हो जाता है at the end of your journey. Now, one is that you enjoy the learning process. You don't have any other option to. So the best way we can make the journey more meaningful is to enjoy the learning process. अगर आप enjoy नहीं करेंगे तो maybe 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपका पैशन फिजल आउट हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट दैट कॉन्शियस थिंकिंग ऑफ लर्निंग, एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर प्रोग्रेस. अगर आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, लेट्स से ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो आपके माइंड में इतनी एंग्जाइटी नहीं होती, आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहता बिकॉज आप मेजर कर सकते हैं कि उस टाइम आप यहाँ पे थे, अभी आप यहाँ पे हैं, तो इतना गैप क्रिएटेड हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क. एंड दिस इज द वे यू शुड गो अबाउट इट एंड दिस इज द वे यू शुड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट योर प्रोग्रेस, हाउ इफेक्टिव प्रोग्रेस यू आर मेकिंग. इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज, अगर आपको लगता है प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम कैसे उसको इम्प्रूव करना है वो भी सोचिए, उस बारे में स्ट्रैटेजाइज कीजिए. गो थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ टॉपर्स. हर एक इंसान को गाइज ऐसा लगता है कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, उसका बैड लक है, उसका रिचेड लक है, बाकी लोग बहुत लकी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. हर एक इंसान छोटे से लेके बड़ा, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, स्ट्रगल्स रहे हैं, एंड योर स्ट्रगल इज ऑल्सो जस्ट वन ऑफ द मैनी स्ट्रगल्स इन द वर्ल्ड. कई सारे एस्पिरेंट्स कि आपने इंटरव्यू देखेंगे जहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, दे हैड अ वेरी टफ लाइफ ग्रोइंग अप एंड दे यूज्ड टू पिक अप दोज पेटी जॉब्स एंड अल्टीमेटली थ्रू देयर शेयर हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल दे वर एबल टू बिकम IAS ऑफिसर्स. एंड इवन दोज गाइज हु आर फ्रॉम अ रिलेटिवली वेल ऑफ बैकग्राउंड, उनको भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर होते हैं. ईरा सिंघल मैम की आपने स्टोरी सुनी होगी, राइट. सो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में भी पढ़िए, तब जाके आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा. आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं. IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सबको स्ट्रगल करना पड़ा है एस्पिरेंट्स को जो IAS ऑफिसर बना है. बिकॉज IAS एग्जाम इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन एंड योर एबिलिटी टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स.
And also what you can do is you can read some novels, you can read some stories on internet about some of the great personalities. For example, Abraham Lincoln, for example, Winston Churchill, Gandhi ji, Nehru. So there are a lot of people that you will find whose struggles have been commendable in life and worthy of emulation. The next important tip is to take constructive breaks. ब्रेक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम में. 10 घंटा 12 घंटा पढ़ तो लिया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट वर्थ वाइल, इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई वुड से दैट 6 से 8 घंटा अगर इफेक्टिवली पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो काफ़ी है. बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर कितना पढ़ें, 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा. ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है जितना आपका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं. मे बी 6 to 8 hours. सम पीपल आर ऑल्सो गुड एट, let's say, studying 8 to 10 hours with utmost concentration. But there is a very important need of taking constructive breaks. आपको हर दिन constructive break लेना पड़ेगा, because it will burn you out if you're not doing that. By constructive breaks, I mean that something which you are enjoying and you are also learning in the process. For example, there is a series on the Constitution of India that is hosted by स्वरा भास्कर. So इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और ये जो पार्ट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपके एग्जाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए. सो यू कैन वॉच दोज एपिसोड्स ऑन यूट्यूब. मे बी यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स. कई सारे स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करते, तो उनको लगता है कि ये बर्डन है, दे इनकलकेट इन देयर शेड्यूल. But a lot of aspirants, they enjoy reading newspaper. Before commencing the UPSC preparation, they have been reading newspaper and that's a habit. So आप उस चीज़ को एक constructive break की तरह ले सकते हैं. For example, you take a break at 1 o'clock and you read the newspaper from 1 to 2. So that's a kind of break for you. Constructive break है. आपको वर्ल्ड के बारे में पता चल रहा है, कंट्री के बारे में पता चल रहा है, और आप ब्रेक भी ले रहे हो. And then you can also going for, let's say, going on a jog, and also you can do yoga on a daily basis. You can do some meditation, and as I said, you can take up some sports. So that is the way in which you can utilize your breaks in a very constructive manner, so that it is ultimately leading you to higher motivation. ट्राई स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया से दूर रहना है, नहीं रहना, कितना रहना है, वो अल्टीमेटली आपका जजमेंट है. बट आई वुड सजेस्ट पर्सनली दैट यू मिनिमाइज इट, इफ नॉट एलिमिनेट इट ऑल टुगेदर. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इट विल जस्ट इंक्रीज योर एंग्जाइटी इफ यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू देम. बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि आपके फ्रेंड्स तो वेकेशन ले रहे हैं, कोई ग्रीस में, कोई पार्टी कर रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, उनकी पिक्स हैं, एंड देन यू फील समवट down that they are enjoying their life so much, and here you are basically slogging and going through this grinding process for quite some time. So that is why you should cut off from the social media, I would suggest. And you have your own social circle, small social circle. There is no doubt about it that social circle is important, but try to stay away from social media. Maybe you can be there on WhatsApp, but don't make it an addiction. प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन जनरली आपको बाइट कर लेता है, एंड देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो दैट शुड नॉट हैपन. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, पीपल हु आर पॉजिटिव, हु कैन शेयर देयर struggles with you, and you can share your struggles with them. So those are the people that you should surround yourself with. They could be your friends, they could be your peers who are preparing for UPSC exam, they could be your relatives. But it is very very important guys कि आप noxious toxic लोगों से दूर रहें, because this is that one thing which would have a lot of bearing on your psychology. अगर आप पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहते हैं, वो पॉजिटिव बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, आपके हितैषी होते हैं, चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, उसी तरीके से बात करेंगे, एंड यू विल बी इन अ पॉजिटिव मूड, यू वुड गेट मोटिवेटेड, एनकरेज. एंड देयर आर अदर पीपल. शर्मा जी के बेटे ने वो कर लिया, वो तो IAS एग्जाम निकाल चुका है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, नासा में साइंटिस्ट है, तो वो हमेशा आपको नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, एंड दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू बीइंग ड्रैग थ्रू द मड. दैट इज समथिंग you should avoid. You should stay away from negative people. I would say that you should absolutely get cut off, because
अगर आप उन लोगों के टच में रहेंगे, वो समय समय पे पूछते रहेंगे, अरे आपका एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं, आप ऑफिसर बने कि नहीं, क्या हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, do you have the quality of being an IAS officer, all those sorts of talks. And I would say that just stay away from those people. And finally, my last tip, but not the least, is go on vacations once in a while. It is very important to detoxify yourself, to unwind yourself. This is one of the most important things that a lot of students, aspirants, they tend to ignore. उनको लगता है कि पहले वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें, पहले वो आईएएस ऑफिसर बन जाएं और उसके बाद वो लोग वेकेशन पर जाएंगे आराम से। बट ऐसा नहीं होता गाइस, आप लोगों को लाइफ बहुत बैलेंस्ड रखनी बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट मेक इट सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड, एसिमेट्रिक। टाइम पे 6 महीने में, 8 महीने में किसी ना किसी वेकेशन पे जाइए। ज़्यादा नहीं तो पास का कोई हिल स्टेशन है, कोई लेट्स से हिस्टोरिकल सिटी है, वहाँ पे चले जाइए और अपने को अनवाइंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। मे बी यू कैन गो टू सम relative, you can go to a friend's place who is living in another city, so that way you have to just disengage from the monotony, otherwise you will lose your passion and enthusiasm। और अगर आप वेकेशन से वापस आते हैं तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है, एक नया sense of excitement मिलता है, and that way you become much more productive than you otherwise would be। So guys, these were the important tips that I have shared with you। इन टिप्स का आपको फ़ायदा तब होगा जब आप कॉन्शियसली इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और रेगुलरली वो हैबिट कल्टीवेट करेंगे जहाँ पे आप पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, आपका जो मोरल है वो बहुत हाई रहे। बिकॉज यू सी, आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर अप्स एंड डाउन्स, and it is very natural for a lot of aspirants to feel low, but what UPSC is also testing apart from your knowledge is your ability to rise up after taking a beating, after having a setback। That is the most important quality, or rather one of the most important qualities that should be in a civil servant। बहुत challenges हैं देश में, आपको civil servant बनने के बाद बहुत challenges face करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी मिल जाएगी और आपको वहीं बैठे रहना है and you have to enjoy your life। So there would be challenges, a lot of challenges, much bigger challenges। You have to be mentally prepared for that। And with that note, I end this session। Thank you so much guys. Those of you who have not subscribed to the channel, please do subscribe to it, because rest of the sessions are also going to be very important, just like this session। Thank you so much. See you again।